Hello everyone. Good morning to all of you. Today in this video, I am going to start a new topic solid state physics for part 3 students. Okay? So it will help to part 3 students for preparing solid state physics. Since we are going to start and we have to read so many questions such as reciprocal lattice, Miller indices, and there are so many other questions, Lodge equation. But before going to study the questions important for examination, I think we should know some basic things, important terminology, which is frequently used in solid state physics, especially when we read crystal structure. Unless you know the meaning of lattice, basis, okay, lattice, basis, primitive translation vectors, unit cell, crystal translation vectors, Brebbius lattice, we are not able to understand the questions coming in the next video. So again I am saying this is the introductory class in which I am going to explain few terminology, or you may say today we prepare a base. Okay, so let us see what is the first thing in this video. You have heard crystal. So what is crystal and how many types of solids, on what basis we divide it? So let us see. On the basis of structure, solid can be divided into two categories. First, crystalline solid, and second, amorphous, or you may say non-crystalline. So let us try to understand what is the difference between crystalline and non-crystalline solid. Because nature, or in nature, you will see the most solids in crystalline state. So we should know why most of the solids found in nature is in crystalline state. So what is the characteristics of crystal? See, when we look solids, we could not distinguish them through external appearance. देखो एक चीज बताते हैं कि कोई भी सॉलिड को जब हम देखते हैं तो ऊपर से क्या लगता है, वो ठोस लगता है। सॉलिड मतलब क्या, हम लोग एक सिंपल मीनिंग समझते हैं कि एक रिजिड शेप होगा, उसका एक फिक्स्ड शेप होगा, वॉल्यूम होगा। क्या ऊपर से हम देख के सिंपली व्हेन वी लुक द सॉलिड कैन वी डिस्टिंग्विश, are we able to distinguish whether it is crystalline or amorphous? How are the atoms arranged inside? Is there any definite pattern? Are there is no any definite pattern, randomly oriented? So all the things we can't see, just like a black
हाउस, ब्लैक बॉक्स, डार्क। तो जब हम उसको देख के नहीं बता सकते हैं, उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस से नहीं बता सकते हैं, तो आखिर हम ये कैसे जानेंगे कि फंडामेंटल पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस जो सॉलिड को बना रहा है वो कैसे अरेंज्ड है? सो मनुष्य की जो है ना हमेशा इच्छा होती है, मनुष्य इच्छुक जिज्ञासु है, ये हमेशा सोचते रहता है कि आखिर उसमें क्या है, ऐसा क्या है, किससे बना है, उसके अंदर क्या है। तो आप अगर शुरू से याद किए होंगे एज ए स्टूडेंट, यू हैव रीड इन प्रीवियस क्लासेस, आप सुने होंगे सॉलिड composed of molecules, molecule composed of atoms, atom composed of fundamental particles। तो इस तरह से हम उसको ब्रेक करते गए, डिवाइड करते गए और पाते गए कि उसके अंदर है। किसी समय ये समझा जाता था कि मॉलिक्यूल तो सबसे लास्ट है, इसके बाद एटम को लास्ट समझा गया, फंडामेंटल पार्टिकल में भी बहुत चीज को लास्ट समझा गया। लेकिन आज रिसर्च जारी है, रिसर्च होते जा रहा है और पता चल रहा है पीछे जितना हम जानते थे वो एनफ नहीं है, सफिशियंट नहीं है, नया चीज हम कुछ मिल जाता है हमको। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड की चर्चा करते हुए वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड। So, in one sentence, you may say the atoms or molecules or ions are arranged in a regular manner। इसमें एक निश्चित तरीके से सजे हुए होते हैं। Most of the solid matter is crystalline। हम अभी एक क्वेश्चन आपको किए थे कि नेचर क्यों फेवर करता है क्रिस्टलाइन स्टेट को, क्यों चाहता है एक सॉलिड क्रिस्टलाइन स्टेट में रहे, ज्यादा से ज्यादा सर। देखिए उसका कारण है कि उसके पास मिनिमम एनर्जी होता है, स्मॉलर अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। दिस इज बिकॉज द एनर्जी ऑफ द ऑर्डर एटॉमिक अरेंजमेंट इज लोअर देन दैट ऑफ इरेगुलर पैकिंग एटम्स। इसलिए वो हमेशा लोएस्ट एनर्जी स्टेट में या लोअर एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है। तो ऐसे सॉलिड जिसमें एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस अगर वो रेगुलर पैटर्न में हो, एक डिफिनिट पैटर्न में हो, एक रेगुलर अरेंजमेंट हो, निश्चित क्रम में सजे हों, तो हम उसको बोलेंगे क्रिस्टल, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और ठीक इसके विपरीत हो गया एमॉर्फस। यहाँ देखिए लिखा हुआ है रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द सॉलिड। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। हमको लगता है कि अब क्लियर हो गए होंगे, जो जानते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं जानते तो जान लीजिए कि क्रिस्टल सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, एमॉर्फस में रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए अब लैटिस। लैटिस क्या है? व्हाट इज लैटिस? लैटिस इज ए रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स in space such that each point has the identical surroundings। The points are known as lattice point। देखिए आप फिगर से थोड़ा बदल। So come to the figure। See here, these are the points, these are the points marked, and you can see the distance between these two, these two, these two क्या है, ये सेम है। फिर अगर आप ये डिस्टेंस लीजिएगा, ये डिस्टेंस लीजिएगा, तो ये डिस्टेंस ये भी सबका सेम है, चाहे वहां दिखे या यहाँ नापिए, चाहे यहाँ नापिए। तो इस तरह से क्या देख रहे हैं, एटम जो सजे हुए हैं एक रेगुलर पैटर्न है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लैटिस। ये एटम नहीं है, पॉइंट है, सॉरी एटम नहीं, पॉइंट्स है। तो ये जो पॉइंट्स है इसको हम लोग जाल जो है उसको बोलते हैं लैटिस। और इस पर अगर हम एटम को या मॉलिक्यूल को या ग्रुप ऑफ एटम को रख देते हैं इसके
बगल में या इस पर, तो लेट उसको हम बेसिस बोलते हैं। तो लेटिस प्लस बेसिस को मिला के कहते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अभी हम यही तो सीखना चाह रहे हैं कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में दो चीज होता है, एक लेटिस प्लस बेसिस मिला के होता है। बेसिस क्या है? बेसिस हो गया कंटेनिंग टू डिफरेंट आयन्स। ये जो है दो आयन दिखा रहे हैं, दो तरह के। देखिए, एक ये इन सर्किल हुआ, एक डॉटेड बड़ा डॉट है। तो ये इसमें आप ये मत समझिए कि एक ही आइटम हो सकता है, दो ही आइटम हो सकता है, थाउजेंड थाउजेंड भी आइटम हो सकता है। ग्रुप ऑफ आइटम बोलिए, आइटम और ग्रुप ऑफ आइटम बोलिए। अब इसको क्या करते हैं, ये जो ग्रुप ऑफ आइटम है या आइटम है, इसको हम इस हर पॉइंट पर रख देते हैं, हर पॉइंट के साथ उसको अटैच कर देते हैं, रख देते हैं, क्या उसको बोलिए, अटैच कर देते हैं। सो व्हेन बेसिस इज अटैच्ड विद द लैटिस, it gives a crystal structure. So basis is defined as an assembly of atoms. Okay, basis is defined as assembly of atoms. Okay, ions or molecules identical in composition, arrangement and orientation, which when repeated in three dimensions generates a crystal structure. ठीक है। तो अभी आपको बोल रहे थे कि ये बेसिस हुआ और ये लेटिस हुआ, और लेटिस के साथ बेसिस को अटैच कर दीजिए तो ये बन जाएगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ लिखा हुआ लेटिस प्लस बेसिस। चलिए अब यूनिट से इसकी चर्चा बार बार आएगी, आगे क्वेश्चन जब भी पढ़िएगा आपको दो तीन चीज की चर्चा, लेटिस, बेसिस, यूनिट सेल, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन, वेक्टर, रिपीटेशन, there are so many things which will occur frequently, which so if you go through different questions answers, इसलिए ये इस क्लास का नाम हम दिए इंट्रोडक्टरी क्लास। इसलिए नाम दिए कि इसमें बहुत चीज आपको बेस सीखने के लिए मिलेगा, और इसके बिना आप फिर आगे सीखने में आपको परेशानी है। इसलिए इसको ध्यान से देखिए, डिफिनेशन सब है। दिस इज ए रीजन ऑफ क्रिस्टल डिफाइंड बाय बेसिस वेक्टर्स ए बी सी। अब देखिए, पहले आपको वहां पढ़ने से पहले यहाँ बताते हैं, ये आपको कि देखिए क्या है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और ये जितने पॉइंट आप देख रहे हैं ये क्या है, सब बराबर दूरी पर है। तभी आपको बोले थे कि लैटिस का एक नेट पॉइंट का नेटवर्क है, पॉइंट्स जो डिफिनिट पैटर्न में अरेंज है। अब हम कोई क्या करते हैं, एक यूनिट सेल का मतलब होता है स्मॉलेस्ट यूनिट जो हम संभव है, जिससे हम देखिए एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, और एक पॉइंट यहाँ है, चारों कॉर्नर पर एक एक पॉइंट। ठीक है, अगर इसको मिला देंगे तो आप एक चीज नोटिस कीजिए कि इसके बगल में भी आप उसी तरह का एक सेट पाइएगा, इसके बगल में भी उसी तरह का, इसके आगे भी उसी तरह का, इसके पीछे भी। और अगर ये थ्री डायमेंशनल है तो इसके ऊपर भी सेम सेट मिलेगा और नीचे भी सेम सेट मिलेगा। क्या तो प्रॉब्लम? तो ये चीज है। अब आप कह सकते हैं क्या हम यूनिट सेल जो बनाएंगे बस इसी तरह चार एटम को रख लिया, चार पॉइंट को ले लिए टू डायमेंशनल में, या थ्री डायमेंशनल में क्या हम चारों कोना पर एक ले लिया, फिर चारों कोनों पर ही नहीं आठ कोना आ गया? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं, आप दूसरा तरह से भी ले सकते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ खाली ये ध्यान रखना है कि उसका इन्वायरमेंट जो है, यानी आपको किसी एक यूनिट सेल को सेलेक्ट करके अगर आप अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइए, इसको इस रूप में बोल सकते हैं, तो आपको इसी तरह का स्ट्रक्चर मिलना चाहिए। ठीक है, ये जो देख रहे हैं, ये एक यूनिट जो चुनते हैं यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं हम लोग डायरेक्शन ले सकते हैं, इसको बेसिस वेक्टर बोलते हैं। ठीक है,
इसको बोलते हैं बेसिस वेक्टर। एक इधर बेसिस वेक्टर हो गया। अभी ये 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल तब सी लेना पड़ेगा। यहाँ लिखें 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ए बी सी यूज टू डिफाइन यूनिट सेल। यूनिट सेल को डिफाइन करते हैं। अच्छा मान लेते हैं यहाँ पर एक चीज और बताते हैं। मान लेते हैं आप इसको रिपीट करना चाहते हैं, तो जैसे ए वेक्टर यहाँ है, आप इसको एक वेक्टर ए जो है एक स्टेप एक यूनिट यहाँ आ जाएगी तो 2a हो जाएगा। और इसका एक स्टेप इस साइड बी चलेगी यानी 2b हो जाएगा। और इसको मिला लीजिए तो क्या देखे कि एक यूनिट का डबल हो गया, दो गुना हो गया। तो ट्रांसलेशन इसको बोलते हैं, ट्रांसलेट कर गए। अब कितना कोई जरूरी नहीं कि हम इधर भी ट्रांसलेट करते, कोई जरूरी 2a ले सकते थे, एक बी ले सकते थे, 3a ले सकते थे, 2b ले सकते थे, 2c ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको काम करते हैं सब। अब है प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है, इस दोनों में क्या देखे, when you see the figure, this one, this unit cell and this unit cell, you find a similarity. There are 4 points and they all are at corners. ओके अगर इसके बगल बगल इसका नेबरिंग लीजिएगा तो फिर जितना शेयर करेगा तो यहाँ अगर मान लीजिए एक इधर से, चलिए 2 डायमेंशन समझिए, एक इधर से आप है यहाँ तैयार होगा, एक यहाँ है इस साइड, तो एक को ना एक इधर है, तो एक ये यूनिट सेल हुआ, एक ये यूनिट सेल हुआ, ये तो, और एक ये यूनिट सेल हुआ। इस कॉर्नर पर आइए तो 4 को लगेगा आपको कि 4 यूनिट सेल का कोना यहाँ मिला हुआ, कॉर्नर मिला हुआ, यानी एक पॉइंट का 4 हिस्सा हो गया। तो 1/4 1/4 1/4 शेयर हो गया। तो 1/4 वहां शेयर हुआ, 1/4 यहाँ है, 1/4 यहाँ है, 1/4 यहाँ है, तो कितना हो टोटल, तो 4 1/4 मतलब एक हो गया। इसलिए देखिए क्या लिखे, ए प्रिमिटिव सेल इज ए टाइप ऑफ यूनिट सेल। ये यूनिट सेल ही है लेकिन एक कंडीशन है, विच कंटेन्स ओनली वन लैटिस पॉइंट। यानी आपको लगेगा कि 4 कोना पर 4 लैटिस पॉइंट है, लेकिन अगर इसको पड़ोसी के साथ, नेबरिंग के साथ इसका शेयर करेगा तो ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/4। 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 3 डायमेंशन की बात हम नहीं कर रहे। 3 डायमेंशन इसी को जनरलाइज करेंगे तो ठीक है। तो इस तरह से 1/4 1/4 तो एक लैटिस पॉइंट है, तो इसलिए इसको हम प्रिमिटिव, इसको और इस दोनों को हम प्रिमिटिव बोलते हैं, ट्रांसलेट प्रिमिटिव यूनिट से। लेकिन अब जरा इसमें आइए, देखिए इस फिगर में आपको एक अंतर मिलेगा, ये जहाँ इंडिकेट कर रहे हैं इसमें चारों कॉर्नर पर 1/4 1/4 शेयर होने के अलावे एक यहाँ भी है, तो इसको हम नॉन प्रिमिटिव बोलेंगे। ठीक है, अभी आपको बोल रहे थे कि जब आप एक एक्सिस की ओर जाइएगा तो उसको वेक्टर ए लेते हैं, दूसरे एक्सिस की ओर जाइए वेक्टर बी, तीसरे की ओर जाते हैं सी, उसको बेसिस वेक्टर्स बोलते हैं। और जितना आगे आप बढ़ना चाहते हैं जिस दिशा में, उतना वो मल्टीप्लाई इंटीजर से करते जाइएगा, निकलते जाएगा। तो उसको हम लोग लिखते हैं, देखिए आर इजकल टू एच ए के बी एल सी। यहाँ एच के एल क्या है, ये इंटीजर है। मान लेते हैं दो, अभी बता रहे थे 2 स्टेप जाते हैं, जैसे मान लेते हैं देखिए यहाँ ए है और यहाँ तक लेना चाहते हैं, 2a हो गया तो एच का मान 2 हो गया। तो ए की तरफ गए तो ये हो गया इंटीजर। अब इसी को आगे बढ़ के बोलते हैं कि क्रिस्टल ट्रांसलेशनल वेक्टर। व्हाट इज क्रिस्टल ट्रांसलेशनल वेक्टर? जस्ट you learnt that in a crystal, a crystal is composed of group of atoms arranged in a regular pattern, so that atomic arrangement at one location looks exactly the same in all respects as the arrangement at a corresponding location somewhere else. अभी आपको बता रहे थे कि इन्वायरमेंट, ये लोग किसी एक लोकेशन पर जो अरेंजमेंट देख रहे हैं, पैटर्न देख रहे हैं, वही लोग दूसरे लोकेशन पर मिलना चाहिए आपको, जिस तभी वो क्रिस्टल के इसमें आएगा।
We say that in such a crystal there exists some smallest group of atoms called the pattern unit. जैसे आप दीवार देखिए, ईंट की दीवार कल्पना कीजिए, जब आप ईंट खोलते जाइए कि ईंट खोलते जाइए तो उसमें क्या होता है कि आपको स्ट्रक्चर एक पैटर्न मिल जाता है कि इसी तरह ईंट अंदर में अरेंज होगा। आप नहीं देख रहे हैं मान लें प्लास्टर दीवार, लेकिन एक लेयर अगर आपको दिखा दें तो आप समझ जाइएगा कि इसी तरह का एक पैटर्न होगा। तो उसी तरह यहाँ भी हम लोग पैटर्न को अगर रिपीट करना चाहते हैं, जिसे बोलेंगे एक लेयर आपको हटाते हैं दूसरा लेयर पर जाना चाहते हैं, तो आपको देखिए उसी को इस तरह लिखते हैं टी इजकल टू n1a, टी इजकल टू n2b, टी इजकल टू n3c। ये n1 n2 n3 फिर वही है, इंटीजर है, आर्बिट्रेरी इंटीजर एंड ए बी सी आर वेक्टर, जिसको हम शुरू में बेसिस वेक्टर बोले थे आपको, या फंडामेंटल ट्रांसलेशनल वेक्टर। अब देखिए, अब यहाँ समझिए, ये मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर आर है और आप कहते हैं कि एक स्टेप यहाँ एक इंटीजर इधर जाना चाहते हैं, यहाँ आप मान लेते हैं आना चाहते हैं इस जगह, तो दो ए आए इधर, और अगर एक ए बी इधर बढ़ना, दो भी बढ़ना चाहे, मान लेते हैं एक सी नहीं बढ़ना चाहते, दो ए बढ़े दो बी बढ़े या एक सी बढ़े, तो अब सवाल उठता है कि इसका आर लिए तो इसका आर डैश नया जो होगा क्या होगा, तो पहले से जितना जितना बढ़े, जैसे n1 कितना बढ़े, एक बढ़े, n2 भी एक बढ़े, 80 तरफ बोले नहीं बढ़ेंगे, तो नहीं बढ़ेंगे तो इसको इस तरह हम लिख देंगे। यहाँ वैल्यू नहीं दिए हैं क्योंकि ये पता नहीं हमको कि कितना ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो ये आर हुआ और इतना हम उसमें ट्रांसलेट किए, इसलिए आर प्लस टी इजकल टू न्यू, जो आर्बिट्रेरी ओरिजिन मिलेगा वो चीज हो जाएगी। चलिए अब एक टर्म है ब्रेवियस लैटिस। अभी आप बोल रहे थे आपको कि बहुत सारे पॉइंट को अगर हम एक निश्चित पैटर्न में सजा देते हैं उसको लैटिस नाम दे देते हैं, और स्पेस लैटिस में यूनिट सेल सेलेक्ट करते हैं। वो एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है, जो लैटिस में क्या होता है, एक मैथमेटिकल कंसेप्ट इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस, such that arrangement of points about a given point is identical to that about any other point। ये हम कई बार रिपीट कर चुके हैं कि किसी एक पॉइंट के आसपास जैसा सराउंडिंग जो है वही अगल बगल दूसरे पॉइंट का सराउंडिंग हुआ, तब वैसे पॉइंट के समूह को हम लोग बोलते हैं स्पेशलिटीज। अब रही बात, हम आपको अभी यूनिट सेल चुनने के लिए बोले थे कि मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स को सेलेक्ट करके मिनिमम वॉल्यूम का एक सेल बनाना है जिसको यूनिट सेल बोलते हैं। कोशिश करते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट इन्वॉल्व हो, लेकिन शर्त ये रहे, वो स्ट्रक्चर ज़्यादा भी पॉइंट इन्वॉल्व करते हैं, शर्त ये हो रहे कि आपको सराउंडिंग का आपको इन्वायरमेंट एग्जैक्ट मिले सच, ताकि ये नहीं कि हम किसी एक डायरेक्शन में बढ़े उसका शेप बदल जाए, नहीं, आपको लगे कि दाहिना भी वही शेप है तो बायां भी वही शेप है, आगे वही शेप है पीछे वही शेप, ऊपर वो शेप है नीचे भी वो शेप है, तभी आपको। अब उसमें मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट लीजिए, एक पॉइंट ज्यादा हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको इस क्राइटेरिया का पालन करना होगा। अब हम अगर मान लेते हैं आपको इस तरह से फ्रीडम दे दिया जाए कि चलिए सेलेक्ट कीजिए, जैसे यहाँ देखिए, फिर हम लौटते हैं फिगर पर, जैसे यहाँ हम क्या किया, देखिए हम तीन स्ट्रक्चर आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ अगर हम इसको पूरा करें ये शेप आपको मिल जाएगा, इसको भी देख सकते हैं अगर आप चाहें तो इधर से पॉइंट अगर हो, देखिए ये स्ट्रक्चर एकदम मिल जाएगा आपको, इसका भी देखिए इधर आपको मिल जाएगा। तो सराउंडिंग इसी को बोलते हैं इन्वायरमेंट, जो आइडेंटिकल सराउंडिंग बोलते हैं। तो ये तो हम तीन तरीके से दिखा, जिसमें इसमें देखिए ए और बी सेम है, अगर ऊपर भी एक स्टेप हम जाएंगे तो सी, तो ए और बी और सी सेम हो जाएगा, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, अब क्यूब में क्या होता है, ए होता है बी होता है सी, तीन साइड तीनों इक्वल, और एंगल भी, ये जो एंगल है अल्फा बीटा गामा हम लेंगे वो भी सेम होगा। तो इस तरह से सपोज यू आर फ्री टू सेलेक्ट
minimum number of points you want to select, then how many types you can select the shape or select unit shape. For example, here I have shown 3 shapes, तो हम इस तरह से 32 शेप ले सकते हैं, लेकिन उसको 14 ग्रुप में बांट सकते हैं। देखिए यहाँ ब्रेवियस इन 1848 gave the concept of space lattice to describe the crystal structure. Space lattice is a mathematical concept represents an infinite number of points in space such that arrangement of points about a given point is identical to that about any other point. तो अब रही बात कि मान लेते हैं ये देखिए, ये अल्फा बीटा गामा एंगल है और एबीसी वेक्टर है, तो हम किस तरह ब्रेवियस कैन बी ग्रुप्ड अंडर 7 क्रिस्टल सिस्टम, नेमली क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरम्बिक। ये डिपेंड करता है कि ए बी सी का मान क्या है और अल्फा बीटा गामा का मान क्या है, उसी पर डिपेंड करता है। जैसे देखिए यहाँ शुरू करते हैं, ये फर्स्ट है क्यूबिक लैटिस। क्यूबिक लैटिस में अभी आपको बोले थे ए बी सी और अल्फा बीटा गामा तीनों 90 से हम, एक है टेट्रागोनल, दूसरा नंबर आइए। टेट्रागोनल में ए और बी तो इक्वल होता है, लेकिन सी उसका बड़ा बड़ा होता है या छोटा था, ये सी उसके बराबर नहीं होता है। अल्फा बीटा गामा 90 होता है। अब देखिए ऑर्थोरम्बिक, ऑर्थोरम्बिक में अल्फा बीटा गामा 90, लेकिन ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। अब आइए मोनोक्लिनिक, मोनोक्लोनिक में ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, बट अल्फा भी गामा 90 बट नॉट इक्वल टू बी। ओके। ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा not equal to beta not equal to gamma. So in this way ट्राइगोनल यूनिट, ट्राइगोनल में ए बी सी तीनों बराबर है, लेकिन ये दोनों तीनों जो है अल्फा बीटा बराबर है, गामा लेस देन 120 और नॉट इक्वल टू 90, 90 से बड़ा और 120 से छोटा। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में ए नॉट ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा इक्वल टू 90 एंड गामा इक्वल टू 1। तो देखिए ये जो अलग अलग आप वैल्यू सेट है उसका, इस तरह से आप ये 7 क्रिस्टल सिस्टम, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन टोटल 14 है, क्योंकि किसी में पॉइंट अंदर भी आता है उसको बॉडी सेंटर बोलते हैं, किसी में फेस पर आता है फेस सेंटर बोलते हैं, किसी में कॉर्नर पर आता है तो उसका बॉडी सेंटर और फेस सेंटर नहीं बोलते हैं उसको। ओके, सो आई थिंक you have understood this terminology. It will help you in next video to understand the questions which I will discuss in the next video. So thank you.